Hello everyone. हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? बाइनरी सर्च की क्लास कैसी चल रही है? समझ आ रहा है सबको कि नहीं? एंड कहाँ तक हो गया? ले रहे हो ना बाइनरी सर्च की क्लास, या बाइनरी सर्च की क्लास भी नहीं ले रहे? ले रहे हैं सर, ठीक है जी। कहाँ तक हो गया सर? Sir, one class are remaining only. फॉर द बाइनरी सर्च। Yeah, only questions are solving in the ठीक है, तो class. क्वेश्चंस भी समझ आ रहे हैं? अभी तक तो जितना करा उतना तो समझ में आ ही रहा है. बढ़िया, अच्छी बात है। नाइस। ठीक है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे, मिनिमम सर्च एलिमेंट, स्क्वायर रूट, ये सब हुए ना क्वेश्चंस? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करके फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, तो मतलब स्टार्ट करते भी और 2-4 मिनट में। फिलहाल आज के लिए मतलब मैंने प्लान जो करा है, इट इज़ वेरी सिंपल। मतलब आज हम ओवरऑल जो है लिंक लिस्ट के मतलब डाउट्स, जनरल डाउट्स जो है वो कवर करने वाले हैं। एज इन की अभी हमारे जो है मैं बताता हूँ लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या बचा है। लिंक लिस्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। एंड दे आर रिलेटेड टू सर्कुलर लिंक लिस्ट। दे आर रिलेटेड टू सर्कुलर लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इस सकेत नोड भाई सॉल्व नहीं हुआ तुमसे क्या भाई? अरे अरे अरे, मतलब केथ नोड में क्या हो गया भाई, क्या हुआ?
कोड किसी ने करा नहीं होगा एंड चलो ठीक है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आज का मोटिव समझा देता हूँ। ठीक है, तो राइट तरुण, राइट, okay, let's talk about today's motive, that what we're going to cover today. So basically I've decided for today is to take a general doubts, and to take general doubts related to English, whatever it is, but it should be general as in that if a majority of students have doubts, doubt in that particular topic. Okay, so we'll cover it in today's class. I'm just devoting it specifically to this class to taking general doubts. Instead, even we are lagging somewhere, even we are lagging, like we are 1 to 2 class behind from the general from the general batches, but that is not an issue. Okay, I'll cover it in the on the weekends. I'll take the classes on the weekends and it will be sorted. Like I don't have any, मतलब मुझे specifically I don't have any problem in it. And since you guys are you know the are having binary search in your general class, and you guys are getting solved questions over there too. So till the moment I'll come to binary search, you will be all clear with that topic. So it will not take much time for us to cover the topic, cover the questions basically, है ना? So it will be a pretty sorted scene. So for today I have decided to take the general doubts for the linked list. ठीक है? हाँ, जगत बताओ. Yes. Sir, can you please let me know that how can we, like, in the array we can store the multiple multiple data in one time, like using for loop. So how can we do that in the linked list? Like how can we store multiple data at one time by the user? Uh, Jagatmeet, I want to ask you that do we store data directly in the linked list, or do we have some other procedure to store data in a linked list? Like what do we actually do with the data, and how we actually create a Like linked list with the data? take the data from the user. Like my He's doubt is talking take about, the sir, how to data take from the user user. input from the user. समझ Yes. He's talking about how to take user input from the user in a linked list. Thank you Is for the your clarification. पर मैं समझ गया. हाँ, Jagatmeet, continue. रिवर्स लिंक लिस्ट का मैंने कोड नहीं भेजा क्या आप लोगों को? रिवर्स लिंक लिस्ट यार कल ही समझा. Mustan Ali, whatever is your name, you can watch yesterday's recording. I've explained it in yesterday's class. Okay, we'll get it from there. Okay, so for this doubt specifically, I would say let's come to a question जहाँ पे मैंने ये particular चीज करी हो, है ना? तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. See, I have tried basically. I had tried my best to solve each and every question from different perspectives so that आपको कोई general doubts आए ना. But still ठीक है. That is obvious. मतलब आते हैं doubts कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. So for this specific question, I'm showing you. For the specific doubt, I'm showing you a question. Here it is a print in reverse question. ठीक है. I hope my screen is good. This is basically print in reverse question, and you can see that I'm getting multiple inputs from the user. I am getting 2, 6, 8, 10, 1. Okay. So there is a way, there is a one approach. Okay. Let's come to open board. And also reverse alternates of node of single language. मैंने वैसे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए वो रखा था ये सेशन, बट क्वेश्चंस में डाउट्स इसलिए ही आते हैं, टॉपिक क्लियर नहीं होता. अभी तक ये क्लियर नहीं हमें कि नोड इनपुट कैसे लेना है लिंक लिस्ट में. ठीक है, इनपुट इन लिंक लिस्ट. आई गेस इट इज अ जनरल डाउट. सो ठीक है, एक छोटा सा डिस्कशन मार लेते हैं इस पे. देखो, देयर इज अ वे that we are getting multiple inputs from the user. We store it in an array. ठीक है, we'll apply a for loop and we will simply store it in an array. ठीक है, and then we will push this array to a function
will push this array to a function that function is responsible. Function is responsible for extracting the elements from the array and creating nodes for them. Creating nodes for elements in array. Okay. What does it mean? That suppose I have value 5, 6, 7. Okay, this is stored in my array. So I'll push this array in a function. It will take value 5 out of array. It will create a node. Okay. Then it will come to value 6. It will do the linking. Here is my head, and here is my some other variable just for linking. So I'll say this is my new node created. This is my new node created. So I will say forward dot next equals to new node, right? Forward dot next equals to new node. So it will do the linking. So here 6 will come. Here 6 will come. After the 6 has come over here, I'll move forward over here. I'll move forward over here, and I'll push. I'll take this 7 out from here, and I'll create a node, and I'll again do the linking. Okay, and I'll reach to the end if I have 3 elements in my array. Okay. क्या है? बोलिए. Okay. Now another way is just as I have done over here. I'll show you. Yes. What I have done, I have taken how many elements I want to enter in my how many elements I'll be taking input from the user. Suppose I'm taking n inputs from the user. So I have just simply deployed a loop which is running n times. Okay, which is running n times. Anshuman, do you want to say something? Hello. Am I audible, sir? Audible. हेलो. अंशुमन आवाज आ रही है, आप बोलो आगे कुछ. सर मैं ये पूछ रहा था, लिंक्ड लिस्ट क्लास में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम नोड हेड लिखते हैं, तो वो हेड मेमोरी में मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? क्योंकि हम उसमें कोई डाटा वगैरह तो मेंशन करते नहीं है, और वो किस तरीके से मतलब जो फर्दर जो लिंक लिस्ट हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उससे कनेक्ट कैसे होता है? ठीक है, मतलब लिंकिंग नहीं पता आपको, लिंक लिस्ट ये कहना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ बस उस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन, मतलब उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ सर मैं. जो लिंक लिस्ट क्लास के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं नोड हेड करके, लिंक लिस्ट क्लास के अंदर. ठीक है, ये मेरी लिंक लिस्ट क्लास कहाँ गई? मेरी लिंक लिस्ट क्लास कहाँ गई? ये मेरी लिंक लिस्ट क्लास है जिसमें मैं नोड्स क्रिएट, मतलब जो मैंने नोड्स के लिए लिखी हुई है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं हेड को तो कोई वो दी ही नहीं है. नहीं सर इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं उसमें. मैं तुम्हें एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, पहले मैं ये कंटिन्यू कर लूं. ओके. ठीक है. Which question you are taking? Abhishek, I believe. Abhishek, we are just discussing general doubts today, just as in to make everything on track, particularly for the linked list. Before we move to the last assessment, that is linked list 3, which has 3 questions basically. So that will not take much time. But since it is coming to an end, so I want everyone to come on the same page, and everyone should be clear with every single doubt related to linked list. Okay. So okay, I was here. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, देखो, here I am taking n inputs from the user. That means I'll be taking n times. The inputs will be coming from the user n times. So I have deployed a while loop which is running for the n times. Okay, and I am simply taking inputs from the value directly for the process of creating the nodes. Here I am just creating nodes. And I am directly taking values as inputs from the user directly over here. Okay, directly. I'm not storing it somewhere and I'm not then passing it to the list new node, or I'm just not creating some another function to add node. I'm not just creating a function which is basically adding nodes
ठीक है, adding nodes according to the values which I am passing, which I did in a very initial question. Okay, that was just to tell you guys that we can do it in that way also, and it is like it is the most preferable way that we are simply taking inputs from the user directly, and we are directly adding the nodes, and we are directly pushing the values, and we are directly adding the nodes. There is no need to store the value somewhere else, and then we are accessing it, or we are pushing it for creating the node. So there are two ways basically, and this one is more preferable. That's it, I guess, is your answer for this question, that how we do it basically. Okay, I guess it is clear now. If it is clear, Yes, sir. ठीक है. Now, I guess किसने पूछा था एक क्वेश्चन, why you use -1? -1 मैं यहाँ पे वैल्यू डिनोट कर रहा हूँ उसमें -1. ठीक है, आई एम डिनोटिंग अ वैल्यू -1. Here you can, like, this is basically a dummy node basically. ठीक है, again I'll add one thing. This is entirely depends upon your approach. ठीक है, here I did what, I created a node which is having value -1. ठीक है, which is having value -1, and I created a variable prev which is denoting to dummy. ठीक है, so the node which I have created, the dummy is present over there. ठीक है, the dummy is present over there, and sorry, the prev is present over there, and I'm using prev to access the what, to access all the nodes. And why I've used -1? I'll tell you one thing, because this question demands the reverse. Okay, the question demands the reverse. So I have created a -1. That means that a -1 node over here, so that when I'll do the reverse, okay, when I'll do the reverse, it will come like this. Okay, it will come like this. So obviously मतलब ये क्या होगा, ये मतलब समझ रहे हो, इसका नल हो जाएगा, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा इसका -1 का यहाँ पे. ठीक है, so that is what this question was demanding. That's why I created it with value -1. Otherwise there is no no need even to just use -1 over here. I can show you some other question also. Will you discuss binary search problem? So yes, so Bharat, I will definitely discuss, but here we are just discussing few general problems before before ending this linked list session. We are left with 3 questions also, but that is about circular linked list and doubly linked list. Okay, but since we are just ending with single linked list, so I want everything to be clear with everyone, so that there is no particular problem, you know. So that's my concern over here. Okay, so that we'll discuss binary search also, definitely no problem in this. Okay, don't worry. Sum of 2 linked lists. Sir, I take a flatten a linked list. मतलब flatten से मैं नहीं समझा. Here you can see, and someone was asking. Okay, let me come to there in a minute. Someone was asking that what do you mean by node head equals to null, right? So I by this I simply mean I am assigning. This is my head. Okay. When I assign it to a node, that means the address of the node is stored in head. Okay. If I want to access this node, I can simply access it with the help of head. So this basically head is representing that particular node, and when the linked list is empty, this head is null. When the linked list is empty, or there is no node present in the linked list, or we are just starting with the linked list. See, when we start adding the nodes, there is a moment when we are there is nothing present in the linked list. There is no node present in the linked list. So at that time, we cannot assign head to anything. Okay, there is no node. That means the head is we cannot assign any node to our head. So in that case, we write head equals to null. That which simply represents, yes, that we have the linked list is empty, and we will be adding the nodes in the linked list. Currently, there is no node in the linked list. So that represents, this particular statement represents this thing only. You can see node head 1 equals to null. Okay, so I guess I have answered your question. Who's asking? I don't know. Initial value of head is null, definitely. Deepak. ठीक है. और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट?
भाई क्वेश्चंस के बीच में तो बहुत डाउट्स आते हैं। अब मैंने स्पेशल सेशन रखा है तो अब डाउट्स नहीं आ रहे, क्या बात। सर आई हैव वन डाउट। हम्म। सर जैसे हम क्लास नोट डिक्लेयर करते हैं ना, हम्म, तो सर बहुत को देखा है मैंने, जो नोड क्लास है ना उसमें एक पैरामीटर पास करते हैं वो, ठीक है, इंट क्या वैल्यू, हम्म, और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर करते हैं उसी के नीचे, और उसमें सर इंट मतलब नोड नेक्स्ट भी पास करते हैं और इंट वैल्यू भी पास करते हैं सर। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर? नेक्स्ट भी पास करते हैं और वैल्यू भी पास करते हैं। यस। एक सेकंड इस करता, मैं भाई समझा दूंगा, टेंशन मत लो, समझा दूंगा, डोंट वरी। हाँ अब एक बार रिपीट करना, एक बार रिपीट करो। सर नोड क्लास जैसे बनती है ना, हाँ ये बना दिया तो मैंने बस। कुछ लोग तो हाँ, जैसे यहाँ पे आपने जो कंस्ट्रक्टर क्लास बना रखी है उसमें वैल्यू डिक्लेयर कर रखा है ओनली, हम्म, ठीक है। और सर उसके नीचे ही कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वैल्यू के साथ साथ नोड नेक्स्ट बिल्ड कर देते हैं, और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देते हैं। दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट कर देते हैं, हाँ। हाँ, सो इन व्हाट दोनों में क्या व्हाट डिफरेंस हैपेंस, होता है सर, और वर्किंग क्या होता है, प्रोसेस क्या देखो होता है, वर्किंग प्रोसेस? देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्लास नोड डिक्लेयर करी है, ठीक है, एंड आई एम नॉट डिफाइनिंग कि जो ये नेक्स्ट होगा, ठीक है, ये जो नेक्स्ट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला है। इट आई एम नॉट, नेक्स्ट में नल ही रहता है डिफॉल्ट, हाँ राइट। बाय डिफॉल्ट तो वो नल रहता है, अगर हम असाइन भी कर दें तो कोई इशू होगा नहीं यहाँ पे। यस अगर एग्जैक्टली। लाइन नंबर 63 पे सर हम ये लिख दें दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो कोई इशू तो है नहीं हमें। दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, बट आपके पास वो नल आ नहीं रहा ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में नल आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा ना। अगर सर वहां पे दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दे तो कोई इशू होगा क्या? दिस डॉट क्योंकि नेक्स्ट इक्वल्स टू बताया नल। गया है सर, वो तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। हाँ तो आप भाविया सर यहाँ बता रहे यहाँ हैं। आप यहाँ पे नोड नेक्स्ट को नल वैल्यू दे सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पैरामीटर में वैल्यू आ रही है। सी बेसिकली वो जो नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, इट इज जस्ट फॉर द लिंकिंग पर्पस ओनली, ठीक है। मतलब मैं व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू आई एम डिफाइनिंग कि जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। दैट इज द होल मोटिव ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जब कॉल कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर को, इस पर्टिकुलर चीज को, नोड को, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर नोड को मैंने कॉल करा, ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड को मैंने कॉल करा, एंड आई एम सेइंग कि भाई ये जो है मेक अ नोड विद दिस वैल्यू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई एम चेंजिंग द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम चेंजिंग द वैल्यूज अकॉर्डिंगली ऑफ हेड ऑफ पीटीआर, ठीक है। सो हियर आई डोंट हैव एनी नीड टू जस्ट पास द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट आल्सो, ठीक है। सो बस वही चीज है दैट इफ यू वांट टू लिंक इट थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली, सो वी विल पास द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट आल्सो, ठीक है। And in the starting, obviously in the starting it is definitely null, ठीक है। I guess I have also covered it in the few starting questions of the starting, ठीक है, वहां पे मैंने उसी अप्रोच से करवाया था, तो वो भी देख लेना एक बारी तो समझ जाओगे। बट जनरली गो विद दिस अप्रोच, ठीक है, जनरली गो विद दिस अप्रोच हाँ दैट यू सर, नो। मैं यही लाइन नंबर 58 टू 64 है ना, ज्यादातर नोड इसी मेथड से हाँ कंस्ट्रक्ट बस करते हैं। बस, ठीक है। इसी तरीके से करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी मैंने कहीं करा होगा तो देख लेना, उससे पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वल टू नल है, ठीक है। इसमें क्या करा मैंने, इसमें बस एक मैंने इनिशियल कंडीशन दी है, ठीक है, नेक्स्ट इक्वल टू नल की इनिशियल कंडीशन दी है प्लस। हाँ देखो क्या सीन है कि जब जब ये कॉल होगा ना, तब तब मैं इस उसके नेक्स्ट वाले नोड को नल कर दूंगा। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे सपोज मैंने एक नोड क्रिएट करा, ये नोड ऑलरेडी क्रिएटेड था, ठीक है, मैंने एक नोड क्रिएट करा, ठीक है, एंड मैं उसका बोल रहा हूँ नेक्स्ट इक्वल टू नल, क्योंकि उसके आगे कोई नोड ही नहीं है ना, उसके आगे कोई नोड ही नहीं है, तो ये न्यू नोड ऑब्वियस। क्रिएट करते टाइम में वो तो होगा ही, हाँ न्यू नोड नल क्रिएट होगा ही। करते ही मैं बोल रहा हूँ कि उसके नेक्स्ट को नल के बराबर असाइन कर दो, ठीक है। वाई, बिकॉज देयर इज नो नोड प्रेजेंट आफ्टर द फ्रेशली क्रिएटेड नोड, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, इसके आगे तो मैंने कोई नोड लिंक करा ही नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई एम असाइनिंग इट टू नल। व्हाई आई एम असाइनिंग इट टू नल, कि जैसे ही अगर कोई फर्दर नोड भी क्रिएटेड नहीं होता तो ऑब्वियसली एंड में हमारे पास नल मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पास हाँ एंड तो में नल वो मिल जाएगा। वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, जनरली मैं हाँ यही पूछ रहा था। लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक हाँ, है। ये तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और वैल्यू के साथ पास करने का कंस्ट्रक्टर, तो मिडिल एलिमेंट ऐड करते वक्त वो यूज होगा दूसरा कंस्ट्रक्टर हाँ मिडिल तो या दूसरा कंस्ट्रक्टर वही चीज पूछ रहा था मैं, वो मुझे हो गया लगा सॉर्ट था आउट, वो वो हो चीज, गया सॉर्ट, लेकिन
ओके सर, जो नेक्स्ट वैल्यू का पोजीशन पास करना पड़ेगा लेके समथिंग। मेहरान वो हो गया, थैंक यू। सर वो रिवर्स अल्टरनेट नोड वाला क्वेश्चन थोड़ा करा दो ना सर, बहुत मुश्किल। समझ नहीं आया, रिवर्स अल्टरनेट नोड्स वाला क्वेश्चन। मतलब समझ नहीं आया, मैंने आपको कोड भेजा था, ड्राई रन करा था खुद से, नहीं मैं तो मैं तो मतलब वो तो थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन, जो लिंक लिस्ट डिवाइड हो रहा है समथिंग, जो ट्रीज वगैरह समथिंग यूज हो रहा है या मतलब। चलो इसे एंड में डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। लेट्स कंप्लीट विद द डाउट्स, ठीक है, वरना फिर वही सेशन का मोटिव फिर से खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं बहुत लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट में देख लो। Sir, I always face one problem. The problem is linking of one syntax to another, which compilers do. What will you suggest for this problem? मैं समझा नहीं अभिषेक आपकी चीज। Can you also say it like a daily question which can cover सर this? बेसिकली हम लाइन बाय लाइन प्रोसेस को समझते हैं ना, जैसे कंपाइलर में लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है कि एवरी सिंटैक्स इज ओके और नॉट। तो वैसे ही जब हम ड्राई रन करते हैं तो ड्राई रन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि आफ्टर वन वन सेंटेंस वो कौन से स्टेटमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कोड का फ्लो में दिक्कत आता है। हाँ, फ्लो को मतलब ड्राई रन जो कर रहा है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि आफ्टर वन, जैसे मेन प्रोग्राम में मैंने दो स्टेटमेंट लिखे, तो फिर वो जंप करेगा, क्लास पे जाएगा, फिर वहाँ एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर बैक आएगा। तो उसमें थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे वो नोड में जाता है, फिर कहाँ पे किस तरह से वो डिफाइन कर रहा है एक एक नोड को और एक एक ये यही तो कंसेप्ट है, मतलब यही तो चीज है। मतलब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए कैसे उसको रिजॉल्व किया कैसे जा सकता है, मतलब भाई ज्यादा ये प्रॉब्लम तभी दिस पढ़ा जाए। दिस प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर वीक विद oops, ठीक है। मतलब जब oops का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो ऐसा ही होता है कि फ्लो समझ नहीं आता। दैट हमने फंक्शन कॉल कर दिया, फिर वो वापस आएगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कहाँ स्टोर होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। दिस बेसिकली ऑल थिंग्स कम इन द लूप्स बेसिकली, ठीक है। हाँ, अल्टरनेट ओप कराओ, बिल्कुल कराओ, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम कम्स जनरली व्हेन यू आर समवेयर लैगिंग इन oops, ठीक है। क्योंकि फ्लो समझना कोड का तो आई बिलीव इजी है, मतलब कोड पढ़ के तो समझ आ ही जाता है, ठीक है। एंड अगर स्टिल वो भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो उसमें थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, डीबगर यूज कर सकते हो। डीबगर यूज अ गुड आईडी, आई वुड से, ठीक है। इंटेलिजे यूज कर लो, इंटेलिजे में डीबगर मोड होता है। तो इन डीबगर मोड व्हाट हैपेंस इज कि वो पूरे जो जो लाइन एग्जीक्यूट होती है वो वहां पे हाईलाइट करता रहता है उस पर्टिकुलर लाइन को, एंड जो भी उसका आउटकम होता है, जो भी उसका रिजल्ट होता है, वो उसे भी हाईलाइट करता रहता है, ठीक है। सो यू गेट टू नो दैट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट व्हाट इज हैपनिंग विद माय कोड, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकएंड, ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट, वेयर इज द फ्लो करेंटली, ठीक है। सो वी गेट टू नो दीज थिंग्स विद दैट डीबगर आल्सो, ठीक है। if it helps for you then use that, otherwise थोड़ा थोड़ा कोशिश करो कि बिना डीबगर के ही समझ आ जाए, बिकॉज दैट विल समहाउ मेक यू डिपेंडेंट ऑन डीबगर पर्टिकुलरली ना। सो दैट्स मतलब इट। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है उसकी वजह से। क्या लग जाता है? टाइम थोड़ा ज्यादा ये हो जाता है, लग हाँ, जाता है उसमें, उसको ड्राई रन करते करते। वो तो लगेगा। चलो ठीक है। इंटेलिजेंट में डिबगर है सर क्या? डीबगर है इंटेलिजेंट। ओके, थैंक चलो ठीक है। रिवर्स ऑल्टरनेट नोड्स के अलावा कोई और डाउट? किसी ने कहा था स्वैप kth नोड। भाई मैंने कल समझाया था स्वैप kth नोड, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो मतलब मैं तुम्हें कोड भेज दूंगा तो तुम्हें समझ, तब भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। मैंने समझाया। अटेम्प्ट किसने किसने करा, मतलब ये बता दो चलो पॉजिटिवली। सो आपके नोड अटेम्प्ट किस किसने करा, एंड अटेम्प्ट मतलब अगर 40 में से 40 किसी से भी नहीं हुआ तो मतलब फिर तो भाई दिक्कत की बात है। किस किसने अटेम्प्ट करा ये बताओ। एमडी फरहान हो गया, बहुत ही बढ़िया। अटेम्प्ट किया, हो गया, सही है, डन सर, हो गया। अरे भाई सबका तो हो ही गया। 2 केसेस फेल हुए, ठीक है, वो एज केस होंगे, नो प्रॉब्लम गिरिराज।
मुझे कोड शेयर कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ फेल हुआ है। वो एक्सपेक्टेड है, मुझे पता ही था वो फेल होंगे, बट नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, सबका हो गया, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। तो जिन्होंने एटलीस्ट जिन्होंने रिवर्ट करा दे आर सेइंग हो गया, नॉट डन। ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करा है, देखो अनिल, अगर अटेम्प्ट ही नहीं करा तो फिर तो वो नॉट डन ही रहने वाला है। ठीक है, सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट ना। गिरिराज इज सेइंग 2 केसेस फेल हुए, विच इज एक्सेप्टेबल, कि अटेम्प्ट करा, 2 केस फेल हुए, कोई एज केस मिस हो रहा होगा डेफिनेटली, वो 2 मिनट का काम है, वो हो जाएगा। ठीक है, बट इफ इट इज नॉट डन तो लीड कोड पे हो गया है स्वैप बाय वैल्यू, बट स्वैप नोड से एक बार बता दो हिंट टाइप का। स्वैप मतलब क्या कह रहे हो कि ये जो स्वैप कोड वाला, ये स्वैप केस नोड वाला क्वेश्चन है, मतलब इसे बताऊं पर्टिकुलरली डब्ल्यू व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली, आई डिडंट गेट यू। नाइस भाई, सबका हो गया ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया। गिरिराज आप अपना कोड चैट में ड्रॉप कर दो, या कोई भी अपना कोड चैट में ड्रॉप कर दो, सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स आल्सो। ठीक है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगा अदरवाइज। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई जनरल डाउट, कुछ भी, एक्स वाई जी, कहीं भी दिल नहीं लग रहा, केवल ऑल्टरनेट का एज केस बता दीजिए, 2 टेस्ट केस फेल हुए हैं, इसका तर बस, हाँ यार उसी पा रहा हूँ। सम ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट, सम ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट कौन सा क्वेश्चन है, हमने नहीं करा क्या? प्रीति आई थिंक इट इज लाइक समवॉट रिलेटेड टू अ पर्सनल डाउट, तो अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे क्वेश्चन भेज देना, आई कैन सजेस्ट यू समथिंग। ठीक है, ऐड 2 नंबर्स, तो ऐड, अच्छा ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च से बता दो सर। भाई जब तुम तो बहुत आगे हो रहे, आराम से थोड़ा, है ना। ओनली गेटिंग फर्स्ट डिजिट एज आउटपुट। प्रीति ऐसा तो देखो समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपने क्या करा है। ठीक है, मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट, हम्म, सर डब्ल्यू लिस्ट और सर्कुलर लिस्ट हम्म। ये हमेशा जब पढ़ाया नहीं है, उन्होंने बोला है कि वो तुम कर लोगे, किसने नहीं तो पढ़ाया? हमेशा नहीं। मतलब डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट हुआ ही नहीं है आपकी क्लास में, ये कह रहे हो आप? सर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन देखिए, थोड़ा जो क्वेश्चन ब्रीफली नहीं हुआ है। बताया है, थोड़ा क्या हुआ है, ब्रीफली? क्वेश्चन जिसको कोई क्वेश्चन समझ में सॉरी सॉरी, शॉर्ट पूछना में हुआ है मतलब सर। पूछा था किसी ने, तो उसको उन्होंने समझाया था, that's all। मतलब एक सेकेंड, अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया डबली लिंक लिस्ट का, सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो वो उन्होंने समझा दिया, हाँ बस। बस यही हुआ है सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट को तो लेके? इसमें नहीं थोड़ा सर, सा सिखाया गया है पूरा। पूरा सिखाया गया है, ओके भाई, फिर तो सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? हाँ जी हाँ जी। सर जैसे मर्जिंग का भी कॉन्सेप्ट सर ने बताया था जनरली, लेकिन उन्होंने पता है कैसे बताया था, मतलब 2 शॉर्टेड एरेज को, 2 लिंक लिस्ट है ना, हम्म। उसको शॉर्टेड एरे में मर्ज करने का बताया था, लेकिन अगर हम चाहें सर जनरल वे में शॉर्ट करना, तो वो कैसे होगा? और मुझे एक चीज और पूछना था सर, जैसे एरे में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं कि प्लस कर लें माइनस कर लें, तो क्या वैसे है पॉसिबल कि लिंक लिस्ट में हम 2 लिंक लिस्ट नोड्स के वैल्यूज को प्लस कर लें माइनस कर लें, कुछ ऐसा है पॉसिबल लिंक लिस्ट में? हाँ पॉसिबल है, मतलब तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना लिंक लिस्ट की वैल्यू को, हाँ बिल्कुल कर सकते कर हैं। सकते हो ना, और तुम आइटरेट भी कर सकते हो लिंक लिस्ट की वैल्यू, लिंक हाँ नोड्स को। ठीक है, तो आइटरेट करो, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करो, उनके साथ जो करना है करते रहो।
ठीक है। एंड तुम 2 पॉइंटर्स डिप्लॉय करो, ठीक है। एक पॉइंटर जो है तुम्हारा टिल द एंड आइटरेट करेगा, एंड एक पॉइंटर को वहां रखो जिसके साथ तुम्हें प्लस ऑपरेशंस ऐड कराना है। सपोज यू वांट टू ऐड फर्स्ट और थर्ड नोड की वैल्यूज को ऐड कराना है, तो एक पॉइंटर फर्स्ट पे रखोगे, थर्ड पे रखोगे, उनके वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उन्हें प्लस करोगे, फिर उन्हें पुश ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 और एक है 4 5 6 7, ठीक है। तो हम फर्स्ट दोनों लिंक लिस्ट के हेड को असाइन कर देते हैं नल, और पहले वाले लिंक लिस्ट में ट्राइवर्स करके हम 4 तक चले जाते हैं जब तक नल नहीं आता है, हेड डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं आता है, और उसके पॉइंटर को जोड़ देते हैं 4 5 6 7 वाले के हेड से। कुछ ऐसा बता रहे ये ऐड कहाँ हुआ? तुम नोड्स ऐड करने की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं मर्ज करने की बात कर रहा हूँ। आपने नोड ऐड करने की बात बोली तो वो तो अच्छा समझ अच्छा में आ गया। अच्छा, ठीक है। तुम 2 लिंक लिस्ट को मर्ज करने की बात कर रहे हो, यू आर सेइंग हाउ टू मर्ज 2 लिंक लिस्ट, है ना? यस यस यस। हाँ। सी, वही वही जो आपने बोला कि विल गो फॉर द फर्स्ट लिंक लिस्ट, वी विल गो अप टू नल, ठीक है। एंड जो हमारा ओके लास्ट नोड होगा, ऐसे कर सकते हैं दैट दिस इज माय फर्स्ट लिंक लिस्ट, ठीक है, एंड दिस इज नल। यहाँ पे our head is there, our head is here, so here the current scenario is head dot next equals to null, ठीक है। यस सर। And these 3 nodes are for my different link list, and the head one is here. This is head one, which is representing first node of this particular link list, ठीक है। They are already, these 3 nodes are already linked because it is a separately different link list, ठीक है। So we यस can यस। simply say head dot next equals to head one, ठीक है। This head dot next equals to head one will do what? This will come over here, ठीक है। कि तो And इजी obvious, था। हाँ बस इतना ही होगा सर इस पे, एक ही हाँ, लाइन का मतलब हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड वन। हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड वन हो जाएगा, ठीक है। अब हेड वन यहाँ पर है आपका, ठीक है। हेड वन आपका यहाँ पर है, एंड हेड आपका यहाँ पर है। हेड इज हेयर एंड हेड वन इज हेयर, ठीक है। तो 2 पॉइंटर्स ऑटोमेटिकली मतलब आपके हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली ये हेड वन जो है ये प्रीवियस नोड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ सिंगल लिंक, दिस कैन मूव ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ओके this will basically do all the needfuls which you want to do for merging simply two linked lists, ठीक है। This will do the needfuls. हाँ, और मतलब मुझे ये चीज कंफर्म कर दो, मतलब ये तो आप लोगों ने बहुत लेट बताया कि मतलब सब सब बता दो, लेट्स मेक इट क्लियर कि मुझे आगे किसी से बात करनी पड़े ना करनी पड़े, कि डब्ल्यू लिंक और सर्कुलर लिंक क्लियर है कि नहीं, एंड क्लास में अच्छे से क्लियर मतलब पढ़ाए गए थे या नहीं पढ़ाए गए थे। एंड दोज हु आर सेइंग कि नहीं पढ़ाए गए थे, तो मे बी यू मस्ट हैव मिस्ड सम क्लास और व्हाट आई कैन से, ठीक है। तो यस पढ़ाए गए थे, यस, यस मींस इट इज क्लियर है, इट इज क्लियर है, कोई बात ठीक सर, है, क्लियर। थ्योरेटिकल तो पूरा क्लियर है, सर ने बता दिया था। तो दिक्कत कहाँ है? क्लियर है, चलो फिर तो अच्छी बात है। मतलब अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस तो कर लेंगे, क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। कोई डाउट है उसमें तो पूछो। सर्कुलर डबल, नहीं है क्या? बहुत बढ़िया भाई, डबल इंग्लिश रिवर्स करा दो, डबल इंग्लिश रिवर्स, डबल इंग्लिश का रिवर्स, ओके ठीक है, करा दूंगा इंसर्शन सर्कुलर लिंक, ठीक है। ये डाउट बता रहे हो क्या, इंसर्शन इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट? क्वेश्चन तो भाई, अरे भाई क्वेश्चन मत बताओ, वो मैं करा दूंगा, मैं डाउट पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो तो क्वेश्चन करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई टॉपिक में डाउट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंडरस्टैंडिंग में डाउट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंडरस्टैंडिंग में डाउट है, वो पूछ रहा हूँ। ट्रेवर्सिंग ऑफ डबल सिटी, देखो ट्रेवर्सिंग में क्या है, डबल और सिंगली लिंक लिस्ट, मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सिंग आसान है, सबकी आसान है इनकी। डबल की, डबल लिंक लिस्ट में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, as it is clear by its name that it has doubly linked list, ठीक है। Here we have value,
here we have address of next node, and here we have address of previous node. ठीक है. So this is called a doubly linked list because since it has two nodes, two different pointers, two addresses of the previous and the next nodes accordingly. ठीक है. So the traversing is obviously very easy in this particular case. If we have three nodes and this is a node, ठीक है, this is representing to null, ठीक है, and it is here, okay, it has some value, it has also some value, and I am here. If I want to traverse the previous node, so obviously I can go towards in the previous direction with the help of the previous nodes. ठीक है. मतलब इसके लिए बेसिकली क्या होगा, इसके लिए प्रीवियस नोड क्या होगा, ये वाला होगा. तो ये यहाँ पर जा सकता है. यहाँ पे क्या है, प्रीवियस नोड की वैल्यू, प्रीवियस नोड की पॉइंटर है, प्रीवियस नोड की लोकेशन है यहाँ पर. ठीक है, हमारे पास वी हैव द location for the previous nodes which can help previous node which can help me, in iterating in the reverse direction. So what happens is it makes the task easy to iterate to any node. ठीक है. अब सिंगल लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था, मैं बार बार दो पॉइंटर्स डिप्लॉय कर रहा हूँ. ठीक है, दो पॉइंटर्स डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं हेड के लिए, हेड की वैल्यू बचाने के लिए, ये हेड है यहाँ पर, मैं हेड की वैल्यू को बचाने के लिए मैं फॉरवर्ड एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं टेम्प एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट तक इटरेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि इफ आई विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ आई विल कम टू दिस नोड, I cannot move here. ठीक है, I cannot move here. Why I cannot move here? Because I don't have any link. ठीक है, I don't have any link to which will take me to this node. ठीक है, I don't have any link. You can see we are moving in the forward direction only. There is no link present. See, and what happens is here. What happens is that even if I'm here, I have a place in my node which is storing the value of the previous node, which is storing the address of the previous node. So I can simply go in the previous direction also for the doubly linked list. ठीक है. So this is how we traverse in a doubly linked list. ठीक है, in a doubly linked list. And what happens in a case of circular linked list is that it has some value. ठीक है, it has also some कोड वाइज एक्सप्लेन कर दीजिएगा. वो तो मैं कर ही दूंगा ब्रो. अभी पहले लॉजिक समझ लो. ठीक है, जब लॉजिक समझ लोगे तो कोड समझ आ जाएंगे, वरना फिर कोड जब कराऊंगा तो फिर कोड में डाउट आएंगे. ठीक है, ये क्या लिखा, वो क्या लिखा. ठीक है, तो अभी लॉजिक ही समझ लो, कोड तो करा ही दूंगा मैं. ठीक है. सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली मतलब एक सर्कुलर पैटर्न बन जाता है. ठीक है, द एंड्स आर कनेक्टेड व्हिच अगेन हेल्प मी इन ट्रैवर्सिंग इन मतलब अगेन ट्रैवर्सिंग का एक जो है कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाता है यहाँ पर. सपोज आई एम हियर एंड मुझे आई हैव टू रीच दिस पर्टिकुलर नोड, माय डेस्टिनेशन इज दिस पर्टिकुलर नोड. सो व्हाट आई विल डू, आई विल इटरेट टू द नोड्स, एंड ये नल की जगह हियर व्हाट हैपेंस जनरली इज द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू नल. ठीक है, the last node is connected to null, but what happens in this case is it is connected to the first node, it is connected to the head basically. ठीक है, so it is ultimately give like it is a circle, it is a never ending process. We can iterate n number of times without breaking, like without getting break for somewhere, है ना. So this is what a circular linked list is. ठीक है, so ऐसे हम circular सर्कुलर हो सकता है. क्या कह रहे हो? डबली लिंक में सर्कुलर कर सकते हैं ना. डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर कर सकते हैं. हाँ, उनके एंड पॉइंट्स अगर आप कनेक्ट कर दे तो वो भी फिर मतलब सर्कुलर ही हो जाएगा ना. एंड पॉइंट्स मतलब जैसे 5 नोड है, 5 नोड में 3 को सर्कुलर कर दे तो और एक हेड डिफाइन कर दे तो हो सकता है. क्या कह रहे हो, आवाज नहीं समझ आ मतलब रही. पहला 2 नोड जो है, फर्स्ट 2 नोड, वो 2 मेरा सिंगल लिंक लिस्ट की तरह है, एंड देन आफ्टर 3 4 5 आर सर्कुलर लिंक. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा क्या होगा, मतलब 3 4 5 आर सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब आप यहाँ पे जो आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया है ना सर, हाँ, उसके आगे 2 नोड और लगा दीजिए. ठीक है, सर इसके आगे. साइक्लिक फॉर्मेशन की बात कर रहा है वो, साइक्लिक फॉर्मेशन. अच्छा, ठीक है, मतलब इसके आगे 2 नोड्स और लगा दूं मैं. ठीक है,
हाँ सर। ठीक है, लगा दिए। फिर उसे उसे मैं फर्स्ट नोड से जोड़ दूंगा तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट ही बन जाएगा ना। साइक्लिक साइक्लिक का बेसिकली फंडा क्या है, मतलब उसका यूज क्या है साइक्लिक बनाने का? मतलब जो ये हमने साइकिल बनाई है इसकी बात कर रहा हूँ ना। नहीं मतलब ये तो आपने सर्कुलर बनाया है सर, ठीक है, इसके आगे अगर हम दो नोड और आगे लगा दें, हाँ ठीक है, हाँ। या पीछे लगा दें, तो वैसा साइक्लिक फॉर्मेशन का क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट है साइक्लिक या फॉर्मेशन कोई के लिए यूज है, स्पेशल यूज है? हम्म, मतलब इसका बेनिफिट, इसका तो मुझे ये समझ आता है व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ नोड्स ना। ठीक है, व्हेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ नोड्स तो उसमें आइटरेशन का अगेन एक हेल्प हो जाता है कि हमने एक साइक्लिक फॉर्मेट बना लिया है, तो अगेन एक आइटरेशन में वो हेल्प कर देता है फॉर दैट पर्टिकुलर नोड्स। ठीक है, तो वो साइक्लिक पैटर्न में हम आइटरेट कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी बनाने का यही एक वो है मोटिव की here we have nothing, बस हमारे पास सिंगल नोड्स है। ठीक है, मतलब जो नोड्स है दे आर स्टोरिंग द वैल्यूज ऑफ द फॉरवर्ड नोड्स। ठीक है, बट स्टिल वी कैन आइटरेट देम इजीली। सो यहाँ पे भी फॉर्मेशन का मतलब एक ही कंसेप्ट था टू हैव अ बेटर आइटरेशन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि मतलब साइक्लिक में भी यही होता है कि आइटरेशन में वो इजीली हेल्प कर देता है। ठीक है, बाकी अगर उसका कोई मुझे तुम अगर कहोगे आई विल सजेस्ट, तो लाइक सर अगर साइक्लिक बनाने का क्या फायदा, अगर मेरे को ट्रैवर्स ही करना है और मेरा मान लीजिए जो भी हेड था, ठीक है, वो मेरा लॉस हो जाता है, तो हम साइक्लिक वे में वापस से फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं अगर मेरे को उसका डेटा पता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक का, तो फिर सर्कुलर का, तो फिर साइक्लिक बनाने का क्या फायदा? वहां पे मेरे को एक नोड तो पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा। मतलब देखो साइक्लिक का मुझे स्पेसिफिकली ऐसा पता है कि साइक्लिक और सर्कुलर इज सेम। ठीक है, बट अगर साइक्लिक में आप एग्जैक्टली रेफर किस चीज को कर रहे हो मुझे वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, साइक्लिक इज सर बेसिकली दिस पांच फॉर्मेशन। नोड ले लीजिए, 5 नोड ले लीजिए। चलो जो पाँच। फिफ्थ नोड है उसका जो डॉट नेक्स्ट है, जो कि नल पॉइंट करना चाहिए, हाँ, वो पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड को। वो पॉइंट कर रहा है थर्ड नोड। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये सारे 5 लिंक लिस्ट जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, तो ठीक है ना, मतलब वही बात हो गई ना एक कि मेरे पास एक हेड है। ठीक है, मेरे पास एक हेड है एंड मेरे पास एक टेल है। तो मुझे अगर डायरेक्टली ये नोड आइटरेट करना है तो मैं टेल डॉट नेक्स्ट से आइटरेट कर सकता हूँ ना। इट इज गिविंग मी अ बेटर आइटरेशन, है ना। तो बस वही बात है। यहाँ पे सर्कुलर में क्या था कि अगर मुझे थर्ड नोड से मतलब सपोज मुझे सेकंड नोड से फिफ्थ नोड तक जाना है तो मैं यहाँ से उठ के यहाँ तक जा रहा हूँ, या मतलब सेकंड नोड से यहाँ आना है तो मैं यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा हूँ। बस यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली मेरे पास हेड में वैल्यू स्टोर है। मतलब इन शॉर्ट ये है चीजें आइटरेशन, मतलब आइटरेशन इजी कर रही है। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट था, डबली लिंक लिस्ट था, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास प्रीवियस नोड्स की भी वैल्यू स्टोर्ड है, बट हमें उसकी क्या जरूरत पड़ी सर्कुलर की? अगेन आइटरेशन वाली बात ही आ गई यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास साइक्लिक है तो सर्कुलर की क्या जरूरत है। ठीक है, इट इज समवट, इट डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस। ठीक है, यूज केस पे भी डिपेंड सर करता है कि तुम क्या यूज कर रहे हो। क्वेश्चन करा दीजिए सर, सर्कुलर एंड डबली का एक एक, क्योंकि भव्य सर का मैसेज आ गया, शार्प 9 बजे ज्वाइन करना है। मैंने स्टार्टिंग में वैसे कहा था कि हम डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो और कोई डाउट किसी को? हम्म जल्दी बताओ, और किसी को कोई डाउट है? वी आर क्लियर विद थ्योरी पार्ट ऑफ हेलो साइक्लिक। हेलो बताइए। सर, अब हम डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो ना, क्रिएट करने के टाइम जो हमको प्रीवियस भी हम डिसाइड करना है, प्रीवियस भी ऐड करते ही आना है हाँ जब हाँ हाँ। नोड ऐड करते वक्त। हम्म, ओके, हाँ हाँ मैंने तब और प्रीवियस हम कैसे वो प्रीवियस नोड पे हम ऐड करेंगे? वो एक लाइन कोड बोल दो ना, एक या 2 लाइन कोड। मतलब प्रीवियस का टेक केयर कैसे करेंगे? हाँ, हर बार हम प्रीवियस कैसे लास्ट नोड पे ऐड करेंगे, लास्ट 4 नोड पे। चलो ठीक है,
ये क्वेश्चन सही है, पर मैं सोच रहा था कि एक बार ऑल्टरनेट वाला कवर कर लेते। चलो ठीक है, मतलब अभी अगर हम कोड पर्सपेक्टिव से देखें तो अब हमारे पास जो सर्कुलर डब्ल्यू के जो है कोड पर्सपेक्टिव वाली चीजें बच गई हैं कि हम कैसे लिंकिंग करने वाले बेसिकली, ठीक है। तो वो तो क्लियर हो जाएंगी चीजें, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। बट ये मेक श्योर कर लो दैट वी आर, मतलब हमें थ्योरी पार्ट्स में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एज तुषार मेंशन की थ्योरी पार्ट में सब कुछ क्लियर है, बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑन कोड लेवल, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल ऑब्वियसली मतलब कम टू द क्वेश्चंस, तो वो वहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट लिंग्वेज में मैंने स्पेसिफिकली नोटिस करा था दैट वी हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स इन द थ्योरी पार्ट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि हम यहाँ पर स्पेसिफिकली थ्योरी कवर कर लेते हैं, कोई भी अगर Sir, डाउट can हो you तो। take the extra session in this weekend? हाँ हाँ, मैं करूंगा ना वीकेंड पे सेशन, क्योंकि तभी तो मैं मैंने हम सर पता है अभी तक इंग्लिश स्टार्ट नहीं करा, अब सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि थ्योरी पार्ट सब थोड़े और बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। तब जाके डाउट्स आएंगे तो मैं संडे को शायद डिस्कस करूँ। अच्छा, मतलब अभी तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करे इंग्लिश पे। हाँ, एक दो करे हैं सर, उससे क्या होगा। नाइस। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, सभी सभी के लिए जनरली, कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मतलब किसी को इतने डाउट्स कैसे आते हैं, मतलब क्यों? अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन इफ यू आर गेटिंग डाउट्स, ठीक है, तो समझ भी आता है। मैं 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, इसलिए बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, दैट इज जस्टिफिकेबल। मतलब इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू आर गेटिंग डाउट्स, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इफ यू आर सर गेटिंग इन योर होमवर्क, अ- दैट इज जस्टिफिकेबल। बट सर क्वेश्चन ऐसा सॉल्व नहीं ऐसा हो रहे नहीं हैं, है। डाउट्स आ रहे हैं, तो वो तो मुझे मतलब समझ भी नहीं आ रहा। सर सर ऐसा तब ऐसा नहीं है, होता है मैं बैठता बेसिकली ही नहीं जब हूँ, आपको लेकिन जब आपको बैठते आइडिया हैं ना सर लगाओ तो कि आपको करना है, और लेकिन अब करने के लिए स्टेप क्या लिखे, व्हाट शुड बी द सिंटेक्स जिसको मुझे लिख करके मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, लॉजिक वो क्लियर नहीं होता है, तब उस वक्त होता है अटेम्प्ट कर कि रहे हो ना, हम, अटेम्प्ट कर रहे हो हाँ मतलब तुम क्वेश्चन। अटेम्प्ट, अगर जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि डिलीट ही कर रहे हैं, ठीक है, डिलीट करने के लिए मुझे नोड क्रिएट करना है, नोड का एक सिंटेक्स मैंने लिख लिया। अब डिलीट करेंगे तो उसमें दो फैक्टर है, इसको डिलीट करेंगे तो वो मेरा डेटा के साथ डिलीट होगा, एड्रेस डिलीट होगा, क्या डिलीट होगा, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए, तो वहां पे कंफ्यूजन रह जाता है सर। और डिबगर जब तक वो ड्राई रन करने में, पहले आइडिया में ही फोकस नहीं हो पाता तो ड्राई रन कहाँ करेंगे। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ये इज, वाला स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आता है सर, मेरे को भी यही आया सर था, इसीलिए मैं क्वेश्चन समझ जनरली गया। पता है प्रॉब्लम ये है सर, जैसे व्हेन वी आर स्टडिंग द एरे, वी नो हाउ टू टेक इनपुट इन एरे, हाउ टू चलो ठीक है गेट ठीक है, एनी एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। सारी बातें ये मैं सारी समझ गया। चीजें हैं सर प्रॉब्लम। मैं सारी बातें समझ गई, पर भाई क्वेश्चंस तो सॉल्व करो, मतलब इंतजार किस चीज का कर रहे हो, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक कि तुम एक महीने बाद आके पूछोगे मुझे इंग्लिश के डाउट्स, तो वो एंटरटेन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी टॉपिक चल रहा है, पीपल आर आस्किंग देयर डाउट्स राइट नाउ, ठीक है। अब मैं बाइनरी सर्च पे स्विच करूंगा, फिर कोई इंग्लिश का डाउट पूछेगा, तो मेरे लिए मुश्किल होगा केटर करना, ठीक है। तो उस केस में फिर लाइव डाउट सेशन जो है आप एक्सेस करो, ठीक है। एंड ये मैंने सेशन रख दिया, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू डू इट बिकॉज वी हैव अ लाइव डाउट सेशन, ठीक है, फॉर केटरिंग दीज जनरल डाउट्स, दीज पब्लिक डाउट्स, दीज पर्सनल डाउट्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं अटक रहे हो, तो मैं उसके लिए इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि हमने लाइव डाउट सेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। सो बस वही सजेशन है कि अगर विद द फ्लो चल रहे हो तो वेल एंड गुड है, शायद आपके जनरल डाउट्स यहाँ पे भी कैटर हो जाए, पर्सनल डाउट्स। बट अगर नहीं चल रहे हो तो गो आस्क योर डाउट्स इन लाइव डाउट सेशन, ठीक है। वहां पर आपके डाउट्स इजीली कैटर हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको पर्सनल अटेंशन मिल रही है। हाँ, अमंग्स 50 स्टूडेंट्स मैं पर्सनल डाउट्स लेने बैठ गया तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। मैंने ये सेशन इसलिए रखा क्योंकि स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में सबको बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं यहाँ पे अगर जनरल डाउट रख लूंगा तो शायद सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा सर। कल, हाँ हाँ, कल बाइनरी सर्च का सेशन होगा, कल बाइनरी सर्च प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे, प्रोबेबली, ठीक है। तो अपने जनरल डाउट्स, अपने पर्सनल डाउट्स बेसिकली ट्राई टू गेट इट, ट्राई नॉट ट्राई, गेट इट सॉल्व्ड इन द डाउट सेशन, ठीक है ना। लाइव डाउट सेशन को एक्सेस करो, सर दैट इज कल फॉर तो यू। हम लोग लिंक लिस्ट भी करेंगे ना, या बाइनरी सर? क्या? कल तो लिंक ये डबली और सिंगली का करेंगे ना सर क्वेश्चन? हाँ, कल डब्ल्यू और सर्कुलर खत्म कर देंगे, मतलब मोस्टली कल खत्म हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। बाकी वीकेंड्स पे क्लासेस रखेंगे, ठीक है। वीकेंड्स पे क्लासेस रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाइनरी सर्च के, ठीक है, टू गेट इट इनटू द लेवल, ठीक है, नॉट फॉर फॉर सम अदर पर्पस, ठीक है। तो बस यही है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द क्लासेस सेशंस, ठीक है, एंड गो अकॉर्डिंगली।
ठीक है, किसी का कोई जनरल डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल विल गेट टू द क्वेश्चंस since we are cover all clear with the general doubts. Thank you. हेलो सर। जैसे नॉर्मली कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों ही हम लोग साथ में कर लेते हैं। हाँ। तो नोड्स के रिस्पेक्ट में हम वैसा कर सकते हैं क्या? मतलब इनिशियलाइजेशन किस चीज का करोगे आप इसमें? जैसे हम दो डिक्लेरेशन हम करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दिस डॉट डेटा और दिस डॉट नेक्स्ट करते हैं। हम्म, नेक्स्ट तो फिर भी जनरली नल ही रहता है। लेटर हम उसको बीच बीच में हेड को नेक्स्ट को डिफाइन करते रहते हैं। हम्म, तो बेसिकली मेरा ये कहना था कि हम डिक्लेरेशन करते हैं नोड में एक वेरिएबल, एक वैल्यू का और एक नेक्स्ट का। क्या हम उसको इनिशियल उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को बना करके डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। तो क्या हम उसको दोनों को एक साथ कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्रोसेस भी हो सकता है या होता है? हाँ हो सकता है। और ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जो भी बोल रहे हो आप, ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन, ठीक है? तो ज्यादा क्लियर होगा कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है? वैसा हो सर सकता है। मैंने किया था कंस्ट्रक्ट ऊपर के दोनों जो डिक्लेरेशन करते हैं उसको हटा के मैंने डायरेक्ट सेम लाइन में जहाँ हम कंस्ट्रक्टर कॉल करके दिस करते हैं वहीं पे मैंने लिखा था, बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, देख लेंगे जो नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, तो कोई और था कुछ पूछा था? मेहरान था I guess। चलो ठीक है, मतलब लेट्स कंटिन्यू टुमारो on the on the sir, method improve explain कर देंगे प्लीज। हाँ ठीक है, मतलब मुझे अंकित याद दिला देना। मैं आई कवर इट समवेयर इन द क्लास। मैं अकॉर्डिंगली इसके लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? बट आई विल कवर इट समवेयर, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, आपका सेशन भी स्टार्ट होने वाला होगा। लेट्स कंटिन्यू टुमारो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।